ملتان میں محکمہ فوڈ کا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ آصف رضا کا ساؤتھ ٹوڈے سے خصوصی گفتگو میں کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران 100 سے زائد شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سرکاری گندم کی خرد برد میں ملوث 4 بڑی فلور ملز کا کوٹا معطل اور FIR درج کر لی گئی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، چند ماہ قبل جنوبی پنجاب کو اپنے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث جو جنوبی پنجاب میں جو مختلف خاص طور پر بات کی جائے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر جو لگائی گئی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، لوگوں کا مال مویشی کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کرائسس وہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ لوگوں کے پاس جو اسٹاک کی گئی جو گندم تھی لوگ گھروں میں رکھا کرتے ہیں وہ بھی جو تھی پانی میں بہہ گئی، جس کے باعث جنوبی پنجاب میں ایک خدشہ کھڑا ہوا اور ایک کرائسس جو تھا وہ بھی سامنے آنے لگا، وہ گندم کے حوالے سے تھا۔ تو ایسے میں پنجاب حکومت کی جانب سے لوگوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، خاص طور پر جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اسے متحرک کیا گیا۔ سیکٹری فوڈ پنجاب نادری چٹھا کی جانب سے خصوصی طور پر جو ضلع ملتان تھا اور جو ملتان ڈویژن تھا اس کے اوپر تھوڑا سا برڈن آیا، اور جو گندم تھی اس کی شفٹنگ بھی سیلاب زدہ علاقوں سے یہاں پر کی گئی۔ تو ایسے تمام تر جو اقدامات ہیں گزشتہ چند ماہ میں یہاں پر کیے گئے، تو ایسے میں لوگوں کی جانب سے سٹاک کرنے کا بھی سلسلہ جو تھا سرکاری آٹے کو، یہ بھی چیزیں سامنے آئی۔ تو اب جو ہے ایک بڑی اہم پوسٹ جنوبی پنجاب کے حوالے سے ملتان ڈویژن کے حوالے سے جو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہے انہیں جو ہے آصف رضا کو تعینات کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کارروائیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران FIRs بھی درج کی گئی ہیں، کریک ڈاؤن بھی کیے گئے ہیں، اور اب جو ہے اس میں ریفارمز کو مزید بہتر کرتے ہوئے جو انفورسمنٹ کے حوالے سے جو ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دے دی ہیں۔ آصف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سیکٹری فوڈ پنجاب کی ہدایت پر گزشتہ 1 ماہ سے ہم دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہم سبسیڈائز گندم فلور ملز کو دے رہے ہیں اسی حساب سے ہم ان سے آٹا لیں تاکہ عوام کو ہم سبسیڈائز آٹا فراہم کر سکیں۔ تو 1 ماہ کے دوران ہم نے کچھ 100 جو ہے نا شکایات ایشو کی ہیں مختلف فلور ملز کو۔ 4 کا جو ہے ہم نے لائسنس سسپینڈ کیا ہے جو ارریگولرٹیز میں تھی، 14 کا ہم نے کوٹا معطل کیا ہے، اور ٹوٹل جو ہے 38 لاکھ جو ہم نے فائن کیا ہے، جس میں وہ ریکوری بھی شامل ہے اور فائن بھی شامل ہے۔ اور جہاں تک سپلائی کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ آٹا جو ہے وہ ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں، سپلائی موجود ہے، ہمارے پاس گندم کا سٹاک بھی موجود ہے، اور ہم نے اس کو مزید مؤثر کرنے کے لیے ایک انفورسمنٹ ٹیم بنائی ہے جو ڈے نائٹ اپنی اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کرتی ہے۔ اگر کہیں ہولڈنگ کی اطلاع ملتی ہے یا کہیں کوئی ویٹ پروڈکٹس یا ویٹ کی جو ہے ہولڈنگ یا انلیگل موومنٹ کی ملتی ہے تو اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم انلیگل موومنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے 4 FIR کروا چکے ہیں، اور ملتان، خانوال، لودھراں اور خانوال کے اندر ہم جو ہے گندم کی جو موومنٹ تھی اس کو ہم نے قبضے میں لیا، FIR کروائی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے سپلائی کے حوالے سے کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انفورسمنٹ سیل آپ نے قائم کیا ہے، اس کی ورکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے کارروائی کرے گا، کس طرح سے ایکشن لے گا، اور کیا اس میں طریقہ کار جو ہے اسے اپنایا جائے گا؟ یہ جو انفورسمنٹ سیل ہے یہ ہمارا بیسیکلی جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ ان کی ایکٹیویٹی ہوگی، اور گزشتہ جو ہے 3-4 دنوں میں ہمیں خاطر خواہ اس میں جو ہے نا کارروائی میں ہمیں سپورٹ ملی ہے۔ 2 گاڑیاں جو ہم نے قادر رام بائی پاس سے پکڑی ہیں 850 بیگ کی تھی، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہیڈ محمد والا سائڈ ہے وہاں سے بھی ہم نے پکڑا ہے۔ تو یہ ایک ڈے ٹو ڈے کارروائی ہے، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس میں بہتری آتی رہے گی۔ آج بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ جو ہے ملتان ڈویژن آصف رضا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے حوالے سے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایک انفورسمنٹ سیل جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلی بار جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ یہ خفیہ جو اطلاعات موصول ہوتی ہیں جو مختلف جو ملز کے حوالے سے وہ سرکاری آٹے کی خرد برد میں ملوث ہیں، یا ایسی جو شاپس جہاں پر سرکاری آٹا فراہم کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان ڈویژن کے حوالے سے جو اس کی باؤنڈریز ہیں ادھر بھی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ جو بھی اطلاع ملتی ہے یا ایسی بھی کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ضلع سے یا ڈویژن سے جو گندم ہے وہ دوسرے اضلاع میں منتقل کی جاتی ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور FIR درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی
साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ सजादा नशीन दरबार मखदूम शाह महमूद कुरैशी कल बरोज़ बुध हज़रत शाह अपने आलम दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर उर्स की सह रोज़ा तकरीबात का आगाज़ करेंगे। दरबार के अहाते में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। बरे सगीर के रूहानी पेशवा हज़रत शाह अपने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 709वां सालाना सह रोज़ा उर्स मुबारक कल से मुल्तान में शुरू होगा। सजादा नशीन दरबार साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर सह रोज़ा तकरीबात का आगाज़ करेंगे। सह रोज़ा उर्स की तकरीबात के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। अंदरून सिंध से आने वाले ज़ायरीन दरबार के करीब 20 से ज़ायद स्कूलों में क़याम करेंगे, जबकि दरगाह के अहाते में सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और मुलाजिमीन की खुसूसी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। दरबार के अहाते में मुनक्किद होने वाली सह रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 3 रोज़ा उर्स के दौरान ज़िला हुकूमत के 20 से ज़ायद महकमे अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। मुल्तान में नए तैनात होने वाले एसपी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इमरान जलील का कहना है कि स्मोग और धुंध के सीजन में शहरियों को रोड सेफ्टी बारे आगाही और रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, मुल्तान हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में नए तैनात हुए हैं एसपी जनाब इमरान जलील साहब, जो कि अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो चार्ज संभाला है और चार्ज संभालते ही उन्होंने पूरे जो अपने महकमे हैं उनसे मीटिंग की हैं और उनसे हिदायत ली हैं। ख़ासतौर पर जो अब स्मोक और फोक का जो इस वक्त अब माहौल चल रहा है और जो मौसम आ रहा है, उस हवाले से भी पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो अपनी SOPs यहाँ पर तैयार कर रही हैं कि किस तरह ड्राइवर्स को जो है वो तंबीह की जाए और उनको लेक्चर्स दिए जाएँ, उनको अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए बताया जाए। इमरान जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, जब से आपने दोबारा से चार्ज संभाला है तो कैसा माहौल है और क्या ब्रीफिंग ली है अब तक, और ख़ासतौर पर स्मोक और फोक के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? PHP में यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी 1 हफ़्ता पहले मैंने ज्वाइन किया है मुल्तान। और जैसे कि आपने बताया कि स्मोक का सीज़न जो है वो चल रहा है और स्मोक के बारे में अभी हमारी कैंपेन जो है चल रही हैं। मेरे पास 58 पेट्रोलिंग पोस्ट्स हैं और मैंने इनके साथ मीटिंग कर ली है, मैंने विजिट्स भी किए हैं। हमारी एक बाकायदा एजुकेशन यूनिट है और जिनको हमने गाड़ी भी दी हुई है, उसके इंचार्ज भी हैं, उनके साथ स्टाफ भी है। तो हमारी जो ये टीम है मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अड्डे वालों के साथ और पब्लिक प्लेसेस पे आगाही मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमने उनको बताया है कि अभी विजिबिलिटी का जो लेवल है वो एक कम हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी फॉग और स्मोक बढ़ती जाएगी, विजिबिलिटी का लेवल घटता जाएगा। इसलिए स्पीड को भी और फासलों को भी मेंटेन रखेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। हम स्टिकरिंग भी करें, जैसे आप बता रहे थे कि हम अपने स्टिकर्स भी आवेज़ा करते हैं। स्लो मूविंग व्हीकल्स को भी हम चेक करते हैं इंशाल्लाह। साथ के साथ ना सिर्फ स्मोक और फॉग पे हम काम कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सीडेंट्स के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक के साथ मिल के, ज़िला पुलिस के साथ मिल के, और तेज़ रफ्तारी के ख़िलाफ़ भी हम काम कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि हम मुजरिम इश्तहारी भी पकड़ते हैं, हम असले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं और PSP जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करती है। और मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। और पिछले 3 दिनों में भी हमने क्लाशनिकोफ भी पकड़ी हैं, हमने इश्तहारी भी पकड़े हैं, हमने मंशियात के पर्चे भी दिए हैं। न सिर्फ ये बल्कि PSP जो है एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करती है और भरपूर हमारी जो है वो साथ होता है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के। जी बिल्कुल, SP इमरान जलील साहब, उनका यही कहना है कि इस हवाले से, स्मोक के हवाले से भी उनका जो महकमा है वो काम कर रहा है और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है। इसके साथ साथ जो हादसात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस मौसम में बढ़ जाते हैं, उस हवाले से भी उसकी रोकथाम के कम से कम हादसात हों, उस और ओवर स्पीडिंग या जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी भी शिकायत आती हैं, तो उसके हवाले से भी उनका कहना है कि वो काम कर रहे हैं और दीगर जो जराइम है उस हवाले से जो उनका महकमा है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है। जी। IG पंजाब की हिदायत पर जिला लोधरा में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुकदमात दर्ज करके 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 इश्तहारी मुजरिमान, 3 अदालती मफरूर और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मंशियात और असला बरामद कर लिया गया। लोधरा के इलाके वार्ड नंबर 3 में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी और गलाजत का मजमुआ बन चुके हैं। शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए हैं। उनका क्या कहना है, जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, कहने को तो ज़िले इंतज़ामिया लोधरा ने यह दावा किया हुआ है कि लोधरा शहर के 30 वार्ड्स में
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों को साफ़ और मीठा पानी सरकारी सतह पर सहल तरीके से फराहम किया जा रहा है। लेकिन अगर इन 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का विजिट्स करें तो पता लगता है कि म्यूनसिपल और ज़राई इंतज़ामिया आवाम को बेवकूफ़ बनाने में अपनी महारत का जवाब नहीं रखती। सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है, टूटियाँ टूट चुकी हैं, पाइप लीक हो चुके हैं। बात करते हैं शहरियों से कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल क्या है। मैं यहाँ पानी भरने के लिए आया हुआ था सुबह, और आपने देखा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है, पानी की जो टूटियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं और ख़ासा अच्छा इंतज़ाम नहीं है। मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथराई के लिए काम होना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, मंथली वाइज होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसका इशू है, ये बराए नाम तो फ़िल्टर प्लांट है, अगर आप इसकी ग्रेजुएटी वगैरह को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये इसका पानी कितना शफाफ है। यकीन जाने यहाँ फ़िल्टर जो है वो मेरा ख़्याल है 6-6 4-4 महीने बाद चेंज किए जाते हैं। बराए नाम पानी आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी, आपने सुना, शहरियों का यही कहना है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फ़िल्टर जो तब्दील होने होते हैं शायद 15 रोज़ बाद, वो 6-6 माह तब्दील नहीं होते। तो यहाँ सवाल यही बनता है कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ज़रा शहर का विजिट्स करके इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत देख लें, ताकि उन्हें हक़ाइक़ का इल्म और आवाम को पीने का साफ़ पानी सही तरीके से मुहैया कर सकें। जी, मुल्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी फ्लाईओवर पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 2 भाई जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा बाइक और पानी के टैंकर के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। दोनों भाई मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 14 साला बाबू को निश्तर इमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक हो जाने वाले बच्चों के वालिद का कहना है कि टैंकर के ड्राइवर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की सरबराही में इजलास। माह नवंबर के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने जिला भर में 641 ग्राम फरोशों को 24 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए। डीसी ऑफिस लोधरा में होने वाले इजलास में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि नवंबर में तहसील लोधरा के 375 गिरां फरोशों को 10 लाख रुपए, तहसील कहरोर पक्का के 98 गिरां फरोशों को 6,08,000 रुपए और तहसील दुनियापुर के 168 गिरां फरोशों को 7,24,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स काम के औकात के बाद भी प्राइस चेकिंग को यकीनी बनाएं। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।